Hello everyone, Namaste, hope all of you are well. This is the 7th lecture of class 12, chapter number 3, electrochemistry. This is the 6th lecture. We have discussed about the resistivity constant or specific resistance. Hope all of you have understood about that concept. In that concept we have already discussed about Ohm's law, that V is equal to IR, and after that I had informed you about the resistivity. That resistivity is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of the conductivity wires. So here we have got a formula. R is directly proportional and inversely proportional. So here we have written that R is directly proportional to L by A. As we remove the proportionality, we put a constant, that is resistivity constant. R is equal to rho into L by A. This rho is also known as specific resistance or resistivity constant. So if we calculate the value of rho, the rho is equal to RA by M, right? And if we take area as 1 centimeter square and length as 1 centimeter, so we get rho is equal to R. So we can say that the specific resistance is equal to resistance. Conductivity or conductance is reciprocal of the resistance. If we compare to the conductance, then conductance is reciprocal of resistance. So here I have written that C is equal to 1 by R, and if we calculate the unit value of this conductance, which is inversely proportional to the resistance, that is 1 by Ohm, because you know very well the SI unit of resistance is Ohm. So 1 by Ohm, it's also written as Ohm inverse or Maho, or you can write Siemens also. So this was all things described in the previous lecture. Especially in this lecture I am going to tell you about the measurement of conductivity of ionic solutions. Now question is about the electrochemistry. Ionic solutions measurement. How you will measure the ionic solution? Because in the general solution what happens? Accurate measurement of an unknown resistance can be performed on Wheatstone bridge. And resistance can be measured with the help of Wheatstone bridge. But if we talk about the ionic solution, in the ionic solution here we do not have to take the direct current, we have to use alternate current instead of direct current. So that's why I have written here, you can see on the board that instead of direct current, alternate current is used. But question is not only about the resistance of another solution. So here accurate measurement of an unknown resistance means how much that resistance is conducting current. So that can be measured with the help of Wheatstone bridge. But if the solution is ionic, then the measuring of resistance in an ionic solution, instead of direct current we have to use alternate current, and instead of electrochemical cell we have to use this conductivity cell. Now question is conductivity cell, already we know about it. Now in this conductivity cell you must understand about the electrons. So here in this conductivity cell the two platinum electrodes are used. Two platinum electrodes, got it? Not zinc, not copper. Here platinum electrodes which are coated with the platinum black, which are coated with the platinum black. आप सब जानते होंगे कि platinum सबसे महंगा धातु है. अभी के टाइम में मॉडर्न पीरियड में platinum से ज़्यादा महंगा कोई भी धातु नहीं. So here the conductivity cell consists of two platinum electrodes which are coated with platinum black. This have, अब ये जो आप देखोगे इस platinum का electrodes का length or area I have written here. These have area A and the length L, or separated by the distance of the electrodes is L. So you can write here R is equal to rho into L by A. तो यहाँ पर rho के बदले हम लोग आप देख लीजिए यहाँ पर instead of rho into L by A I have written L by Ka. और ये L by A जो है इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको G स्टार से डिनोट किया जाता है. तो G स्टार is equal to G star into 1 by K is equal to R. Therefore G star is equal to RK.
यहाँ पर बच्चों ये सेल कांस्टेंट है, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट है, आर आपकी रेजिस्टेंस है, और जो रो के बदले हम लोगों ने के यूज किया दैट इज रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। तो जब भी आपको जिस तरह का सीखो तो पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये आयनिक सॉल्यूशन में हम लोगों को अगर निकालना है कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये डायरेक्ट करंट से क्यों नहीं यूज किया जाता। क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट अल्टरनेट करंट आर यूज्ड, राइट। और आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बदले यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हो। तो बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कंडक्टिविटी सेल, तो इसमें जो होता है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की अलग अलग वैल्यूज होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, 1 मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी कंडक्टिविटी का मतलब हो गया 1000। तो इस तरह से अगर कंसंट्रेशन अलग अलग होगा तो हम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगे। और अगर मैं व्हीटस्टोन के हिसाब से अगर सारे रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है, कौन सा वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर वो मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बोर्ड पे दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा सर व्हाट आर यू सेइंग, नाउ वी हैव अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि अननोन रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके तहत हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या है ये, राइट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बनाया है जिसमें हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, तो बच्चों ये डायग्राम आप देख लीजिए। इस डायग्राम को पहले आप लोगों को नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये जो है आपका ये सेल कंडक्टिविटी है। जैसे कि आपका सेल कंडक्टिविटी का वैल्यू निकल जाता है G स्टार इज इक्वल टू R के, जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाता है तो फिर आप अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे होगा, तो पहले तो इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पर ये R1 R4 या फिर R3 और R4 ये दोनों जो है ये दोनों रेजिस्टेंस है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1, क्योंकि यहाँ पर R3 और R4 ये दो रेजिस्टेंस है और इन दोनों से अलग है ये R1, बराबर। तो यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में मैंने R1 को डिनोट किया है। कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2, ये जो कंडक्टिविटी सेल मैंने यहाँ ऊपर में लिखा है, आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, तो इस फिगर में यहाँ पर जो है R2 मैंने अननोन रेजिस्टेंस को लिया है। तो जैसे अननोन रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो आप P देख रहे हो, ये P जो है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये डिवाइस तुरंत डिटेक्ट करके हमको बता देगा। और यहाँ पर ये जो मैंने O लिखा है ये ऑस्किलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 से 5000 साइकिल पर सेकंड है। 500 से 5000 साइकिल पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइस है जो P आपको बता रहा है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे आर्मीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, देखना कोई भी जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, कभी कभी देखना हम लोग बोलते हैं कि हमारा मोबाइल डेड हो गया, तो हम लोग जो मोबाइल का चेकअप करने जाते हैं तो मोबाइल में जान है या नहीं है, तो वो डिवाइस होता है दोनों टच करता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो समझ जाता है आपका मोबाइल मरा नहीं, आपका मोबाइल जिंदा, डेड नहीं मरा। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे ही P डिटेक्ट कर लेगा अगर कुछ भी करंट इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा भी इधर से उधर फ्लो हुआ तो यहाँ पर ये जो P की वैल्यू है वो आपको तुरंत डिटेक्ट करके बता देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोगों को किस चीज की वैल्यू निकालना है, R2 अननोन रेजिस्टेंस का। तो अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने से पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये G की जो वैल्यू है याद रखना, ये G की वैल्यू इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे as we get the value of cell constant, ये G स्टार आपका सेल कांस्टेंट है। जैसे ही आपको ये सेल कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है we can use it for measuring the resistance और conductivity of the solution। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो क्या हम रेजिस्टेंस और सॉल्यूशन की क्या कंडक्टिविटी है निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन आता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेम सॉल्वेंट में डालेंगे तब आपको एक नया टर्म का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। अभी फिलहाल हम लोग इस व्हीटस्टोन ब्रिज में से अगर हमें अननोन सेल की वैलेंसी निकालनी है बच्चों तो ये वैल्यू हमको पुट अप करना है R2 इज इक्वल टू R1 into R4 by R3।
अब बोलोगे सर ये R1, R2, R3, R4 क्या है? तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया R3 and R4 are the resistance to resistance. R1 is, what is this R1? It is a variable resistance और R2 जो है हमारा unknown resistance है। तो ये फॉर्मूला हम लोग डालेंगे R2 is equal to R1 into R4 by R3 और जैसे ही अगर आपको वैल्यू निकल जाता है सेल कांस्टेंट का तो K is equal to सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ये R जो अननोन वैल्यू आपको निकालना K is equal to G स्टार अपॉन R। तो बच्चों इस तरीके से आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके ऊपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में भी है और बहुत सारे पीडीएफ में भी मिलेंगे आपको। हम लोग इसके ऊपर में न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाती है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आपको पता चल जाता है, जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन अगर सॉल्वेंट सेम है तो उस समय कैसे आप डिटेक्ट करोगे ये कौन सा रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो उसके लिए हम लोग एक नया टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से डिनोट किया जाता है। याद रखना बच्चों, ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा m, जिसकी वैल्यू जो है लैम्डा m इज इक्वल टू k बाय c। अब बोलोगे सर ये k क्या है, c क्या है? तो बच्चों k जो है जिसको एक्सप्रेस हम लोग सीमेंस पर या फिर आप कह सकते हो रेसिस्टिविटी पर मीटर के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं s बाय m के रूप में, और c जो है हमारा कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन का जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है लेकिन उनका सॉल्वेंट सेम है। तो बच्चों यहां पर जो वैल्यू आप लोग निकालोगे देख लीजिए, लैम्डा m इज इक्वल टू k बाय c, k इज एक्सप्रेस्ड इन S पर मीटर एंड कंसंट्रेशन C की जो वैल्यू होगी वो मोल पर मीटर क्यूब के हिसाब से होगा। अब आपको यहां पर जैसे आप वैल्यू पुट अप करोगे 1 मोल पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू मोलैरिटी, और यहीं से आपको लैम्डा m की वैल्यू मिलेगी बच्चों, लैम्डा m इज इक्वल टू k अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी। अगर आप इसके यूनिट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा m की जो वैल्यू होगी S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू k की जो वैल्यू होगी वो भी आपका S पर सेंटीमीटर में होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय लीटर अपॉन मोलैरिटी, जिसका ऐसा यूनिट मोल पर लीटर होता है। इस वैल्यू को अगर आप पुट अप करोगे तो डेफिनेटली है आपको मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड याद रखना, बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 3.4, अगर आप लोग चाहे तो इस एग्जांपल को बना सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर, KCl solution is 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with the 0.2 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution and the conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 S per। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेल कांस्टेंट निकाल लेना है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता है R into K, तो जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बच्चों देख लेना, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से आपको पुट अप करना है। जैसे G स्टार की वैल्यू आपको मिल जाता है फिर फटाफट हम लोग इस वैल्यू पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ये न्यूमेरिकल्स भी आपको बता देता हूं ताकि आपको ये कांसेप्ट समझ में आ सके कैसे अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है, कैसे हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ है वो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए और फिर हमें क्या सब निकालना है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, G स्टार इज इक्वल टू R into K। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ था बस उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू भी पुट अप किया है। सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस KR, K की वैल्यू थी यहाँ पर 1.29 S पर मीटर स्क्वायर और R का वैल्यू 100 ओम दिया हुआ था। इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे मीटर इनवर्स में यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, 129 पर मीटर हमारा आंसर है। बोलोगे सर ये कैसे करेगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं S जो होता है ये हमारा जो आप उसको कह सकते हो रिवर्स कंडक्टिविटी, तो ये ओम ओम कैंसिल हो जाएंगे और 129 पर मीटर हमारा वैल्यू किस चीज का निकला है? सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों?
G स्टार से। अब आ जाइए सेकंड जो है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है KCl का जो कंडक्टिविटी जो मोल है, मोल पर लीटर जो मोलैरिटी कंसंट्रेशन वो दिया हुआ क्वेश्चन में 0.02 मोल पर लीटर ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस चीज का हमको कंडक्टिविटी निकालना है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? G/R। जैसे मैंने आपको कहा, एक बार जब आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है तो आप कंडक्टिविटी इजीली निकाल सकते हो। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टिविटी। सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 129 मीटर इनवर्स, और क्वेश्चन में दिया हुआ रेसिस्टिविटी जिसकी वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है 520 ओम। तो इस दोनों वैल्यू को पुट अप कीजिएगा 0.248 S पर मीटर इनवर्स। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहले तो आप लोगों ने किस चीज की वैल्यू निकाली? सेल कांस्टेंट का। उसके बाद आपने किस चीज की वैल्यू निकाली? कंडक्टिविटी का। याद रखना बच्चों, कंडक्टिविटी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 0.02 मोल पर लीटर, जिसको हम मोलैरिटी कंसंट्रेशन कहते हैं। इस 0.02 मोल पर लीटर को हमने मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब में, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 1000 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 1000 into 0.02 दैट इज इक्वल टू 20 मोल पर मीटर क्यूब। ये हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाली, जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 के रूप में इसको डिनोट किया है। अब जैसे आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल गई, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई और कंडक्टिविटी की वैल्यू निकल गई, तब आ जाइए आप मेन चीज पर, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का अभी जस्ट हमने फार्मूला निकाला, लैम्डा m = k/c। ये होता है फार्मूला या नहीं होता बच्चों? ये सबसे मेन है मोलर कंडक्टिविटी। आप लोगों को लर्न क्या रखना है? मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू k/c। तो यहाँ पर बच्चों k की वैल्यू 248 into 10 to the power -3, ये 0.248 को ही हमने क्या किया है बच्चों? क्या लिख सकते हैं? 0.248 को 10 to the power -3, 248 into 10 to the power -3 डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते हैं? देख लो, 0.248 को अगर तुम यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 1000 देना पड़ेगा, और दैट इज इक्वल टू 248 into 10 to the power -3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों? डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी K की जो वैल्यू है, जो 248 into 10 to the power -3 अपॉन C का जो वैल्यू है दैट इज 20, हमने अभी जस्ट निकाला है। देख लीजिए, कंसंट्रेशन 20 मोल पर मीटर क्यूब, और ये जो वैल्यू हमारा निकला था कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस में हमने निकाला यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमने पुट किया जिसकी वैल्यू 124 into 10 to the power -4 S मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से K की वैल्यू निकाल दीजिए, जो आपने यहाँ पे निकाला है। जस्ट देख लीजिए, यहाँ पर निकाला भी आपने 1.29 अपॉन 520 दैट इज 0.248, वहां पर मैंने लिखा दिया और उसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों जब ये सारा वैल्यू निकल गया, उसके बाद हमको फाइंड करना है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू अब आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में डिनोट करना है। तो देख लीजिए, लैम्डा m = k into 1000 सेंटीमीटर पर लीटर क्यूब into मोलैरिटी। तो 1000 यहाँ पे K की वैल्यू 0.248 into 10 to the power -2 into 1000 अपॉन 0.02 मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन था मोल पर लीटर। जब इस सब को डिवाइड कीजिएगा बच्चों, तो फाइनल आंसर जो है 124 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। तो बच्चों तुम कहोगे कि सर ये आंसर तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। यस बच्चों, बट वहां पर जो है मीटर स्क्वायर पर मोल में है, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में कन्वर्ट किया। देखो, जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है पहले तो आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद कौन कौन सा फार्मूला आपने निकाला है उस फार्मूला को लिखिए। उस फार्मूला के तहत, जैसे अभी मोलर कंडक्टिविटी का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, क्या निकाला था बता सकते हैं कोई भी बच्चा? लैम्डा m = क्या होता है? k/c। अब k/c में कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल दीजिए, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दीजिए, फार्मूला पर पुट अप कर दीजिए। तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सब निकालना है और निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले बच्चों उसको लिख लीजिए। उसके बाद वैल्यूज निकालिए। नहीं मैच हो रहा, आप लोग इस YouTube वीडियो के नीचे हमें कमेंट कीजिए कि सर मुझे अभी भी सेल कांस्टेंट नहीं समझ में आया, मोलैरिटी कांस्टेंट नहीं समझ में आया, मोलर कंडक्टिविटी नहीं समझ में आया। जो भी पार्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीज आपको समझ में आ गया है उसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे में जरूर करेंगे।
That's all for today. Thank you very much. Thank you for watching the video. Have a great day.